right? But then from what little we have gathered is that we are 100% sure it's not a singular dam. Yeah, It's maybe it is definitely in terms of its capacity larger than the Three Gorges Dam, which is the largest dam in the world. In terms of electricity output, it's larger, but then it's not a single gravity dam. That is 100% sure from all the data. In fact, like I can quote from the Diplomat article. There was this article published last year by Diplomat. It talks about what I was initially talking about, right? Like it's an integrated project. It's an integrated project with multiple reservoirs. Definitely more than 2 reservoirs are involved in it. It also includes, yes, the water could be, the Yanuk Sampo could be diverted, but that it does not mean it will become a water bomb because it's not essentially a gravity dam, right? There are different types of dams, right? Like so. Gravity would be the worst, right? But then how much we know of what is happening in China, even some Chinese news like I followed and seen, which was very hard to find, but I found it somehow, and I have shown that the construction had started, but then it is of more foundational for like multiple reservoirs. That is like what I have known from various sources, including from Sandarbh, right? There's this South Asian group, right? Like by Himanshu Thakkar sir and various other Indian friends who have contributed to what I'm saying. These are multiple reservoirs, right? And okay, so coming back to sir's question about sir, for your suggestions, right? All the to look at it, right? Also they will review as well, right? Which is a good thing. So okay, sir. Then coming back to population as per the last census, 2011 census, we don't have the current data. It could be more than that, right? And of course, we have to also look at in terms of like what could happen in future, right? We are not estimating the cost of future. We are only looking at what is present, right? We are not estimating what could happen later. And then, sir, a very interesting question from Assam, right? About the Lower Subansiri Dam. Similar movement is developing in Dibang Valley, sir. Yes. similar movement is developing in Lower Dibang Valley, right, where the 3,000 mega Dibang Dam is coming up. Like we are demanding for embankments in downstream. So what I have noticed is that there is no provision for the downstream, especially downstream, no provision whatsoever in the relief. Whatsoever provisions for the downstream, especially Assam is always suffering from the dam-induced floods, right? Like monsoon though is like heavy in Arunachal, it's almost 6 months, right? Monsoon, like beyond the seasonal. So it rains a lot, and then there is this GLOF triggers happening, right? Then there is this GLOF triggered floods happening. It rains a lot, and then it cumulates to whole Guwahati is in underwater, Whatever you are seeing on news, right? Guwahati is always in underwater because of the dam water released from Subansiri and Kameng and other places, right? Including from other countries also, I suppose. But then that's the whole thing here, no? And then my personal opinion on this is I'm very critical about this, right? Okay, so the India lacks like a preventive, mechanism. India is more about relief. And after the post-damage control, right? Flooding is one of the biggest example I've seen in the northeast, right? In Assam, for example, like it rains a lot, then Tara PM Care Fund sab aayega CSR, and then rain stop, all the funds stop, and then we are back to usual business, now. Dam building वापस शुरू हो जाएगा, फिर डूबेगा, So it's like India is like really not. This is not sustainable. I mean, if I would not do that. I think, focus more on, alternatives and preventive measures, right, instead of relief. Also, one more thing why I am pointing this out particularly is because, see, so I think government would argue, no, we have already everything is, as per the process. Government will say this to me, right? And in fact, DCMs are at counter saying that no, we are following on the procedure. Why are you talking about like CSR, right? See, my point is, on one hand, you don't have any preventive measures, you have all the relief measures, fine, that's good. But the preventive measures, let's say the environmental clearance, right, which is
पीछे जो पोस्टर्स लगे हुए हैं डैम को लेके है, तो यहाँ पे जबरदस्ती डैम इम्पोज किया जा रहा है हमारे वहाँ पे। तो हमारे जो किसान हैं वो नहीं चाहते डैम, तो उसमें हम लोग ने काफ़ी प्रोटेस्ट बहुत सालों से करता आया है। तो उसमें काफ़ी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग सरकार को लिख रहे हैं, हमने केंद्रीय सरकार को लिखे, हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है अरुणाचल के उनको लिखा है, सबको लिखा है। लेकिन क्या हो रहा है कि वहाँ पे हमारे आवाज़ को दबाया जा रहा है और पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय किया गया है बहुत सारा, ताकि हमारे आवाज़ को दबा सके। एंड देन वहाँ के जो विलेज हेड्स हैं, विलेज गाँव पूरा, वो सवाल पूछे, पार्टिसिपेट किए थे पीसफुल प्रोटेस्ट पे। तो उस पर क्या हुआ है कि उन लोग को सस्पेंड कर दिया गया है। दे वर इवन टर्मिनेटेड, फ्यू ऑफ देम वर इवन टर्मिनेटेड। तो बहुत सारा ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, जैसा हमने पहले भी बताया था। तो सरकार सुन नहीं रहे, तो इसी वजह से हम लोग अभी दिल्ली आए हुए हैं। जो डैम की बात कर रहे हैं, तो उससे नुकसान गाँव में या उस पूरे एरिया में किस तरह से नुकसान होने की संभावना आपको बता रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा डैम होगा। जो अभी सबसे बड़ा डैम है वो आपका भाखड़ा डैम है। तो भाखड़ा डैम तो 1300 कुछ मेगावाट का है। आप सोचिएगा इससे 1300 मेगावाट डैम, लेकिन वहाँ पे प्रपोज है 11,500 मेगावाट डैम। तो वो तो बहुत ही बड़ा है। तो उस पर बहुत जितना जो ज़मीन डूब रहा है, लाखों में जो किसानी डिस्प्लेस हो रहा है, वो नहीं चाहते, क्योंकि उन लोग वहीं पे पाला भरा है, उनका जो परदादा से परदादा। तो वहाँ पे जो उन लोग का जो डेली लाइवलीहुड उसी से चलता है, उनका खाना पीना, उनका बच्चों का एजुकेशन उसी ज़मीन से चलता है। वहाँ पे जो राइस कल्टीवेशन करता है या तो बाकी जो कल्टीवेशन करता है, कैश क्रॉप कल्टीवेशन करता है, उससे आगे जनरेशन को बढ़ाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा लॉस है। आर्मी की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे आर्मी डिप्लॉय ज़्यादा कर लिया और किसी तरह से वो आप लोग हरासमेंट कर रहे हैं। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं कि आर्मी को जो डिप्लॉय किया हुआ किस तरह से? देखिए, पैरामिलिट्री डिप्लॉय इसलिए किया गया है ताकि हम लोग आवाज़ को दबाया जा सके। नहीं तो ऐसा है कि वहाँ पे भी काफ़ी पुलिसेस है, पुलिस स्टेशन वगैरह है। तो लेकिन क्या कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा CRPF, ITBP वगैरह को वहाँ पे डिप्लॉय किया है। तो क्या होता है कि जब भी हम लोग मीटिंग करना चाहता है, एक पीसफुल मीटिंग करना चाहता है कहीं पे, तो हमें रुकाया जाता है ये बोल के कि आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 144 लागू है। तो 144 को लागू करने के लिए वो पैरामिलिट्रीज लगाए गए। तो जब पीसफुल धरना करना चाहते हैं, उसमें भी ऑब्स्टेकल अड़चन बन के हमें करने नहीं दे रहे। तो क्या डिमांड करते हैं सरकार से? तो डिमांड क्या, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। डिमांड करेंगे तो गुस्सा हो जाता है, ये जेल घुसा देते हैं। तो बस एक प्रेयर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग आइए हमारे वहाँ पे ना, वहाँ पे आइए, किसानों से बात करिए, किसानों से बात करके जानिए कि किसान क्यों नहीं देना चाहता है, और उसके हित पे अच्छे से डिसीजन लीजिएगा। आप यूँ ही आपका कोई बिजनेस आदमी है या तो जो कैपिटलिस्ट है, जो आपको फोर्स कर रहे हैं कि वहाँ पे डैम बना के ये मुनाफा कमाना है, वो मुनाफा कमाना है, तो ये मत करिएगा। किसानों, हम लोग भी भारतीय हैं, किसानों का बात सुनिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। काट दूँ? हमको न्यूज़ में हाईलाइट करने के लिए हम अरुणाचल से आए हैं। मेरा नाम भानु तताक है। हम लोग आज यहाँ में सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम का प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने आए हैं। हमारा पॉइंट्स ये है कि जो सियांग डैम है अरुणाचल में, उसको बहुत एग्रेसिवली पुश किया जा रहा है। आर्मी डाल के हमको प्रोटेस्ट करने नहीं देता है, हम लोग को गैदरिंग्स में जाने नहीं देता है। हमारा ग्राम सभा का सरपंच लोग को सस्पेंड किया जा रहा है, लीडर्स को अरेस्ट किया जा रहा है अरुणाचल में, जिसके खबर नेशनल मीडिया पे नहीं है अच्छे से। इसीलिए हम दिल्ली तक आया है आपको बताने के लिए कि हमारे वहाँ पे आप डैम को इतना ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इसमें हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन किया जा रहा है अभी बोल के कि चाइना डैम बना रहा है तो हम भी बनाएंगे। ऐसा नहीं होता है। हमको एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए, डेटा चाहिए चाइना में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और ये भी चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ चाइना को बात करे, है ना। बात सही होता है, बात सही तो होगा ना, जो भी होगा। हम तो जाके लड़ाई झगड़ा तो करने वाला है नहीं, अभी बात सही होना है। तो जो बात है उसको कंटिन्यू किए, पब्लिकली कीजिए, पब्लिक में ट्रांसपेरेंटली से रखिए। और हमारे वहाँ पे जो अर्थक्वेक जोन में आप डैम बनाने के लिए कर रहे हैं ना, ज़बरदस्ती आर्मी को हटाइए, वो सब हम नहीं मानेंगे। तो सम पॉइंट्स हम दे रहे हैं यहाँ पे कि जो
अभी विदाउट हमारा कंसेंट किया जा रहा है ज़बरदस्ती, वो हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो मैंने आज सारा बहुत लंबा प्रेस ब्रीफिंग दिया है, आज आप सबको भी बताया है यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग में किस तरीके से डैम को पुश किया जा रहा है, लोगों को धरा धमका के अरेस्ट करके आर्मी लगा के ना, तो वो इट्स कम्प्लीटली अनएथिकल, वायलेट्स ऑल आवर फंडामेंटल राइट्स एंड यू नो हम भी इंडियन हैं, हमको भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जीना है, इसीलिए हमको काइंडली इतना ज़बरदस्ती मत कीजिए और कोर्ट ने जो कहा है उसको मानना चाहिए। तो हम बिलीव करते हैं कि इट्स नॉट अ डिक्टेटर गवर्नमेंट, कि कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, हमारा प्रेस रिलीज आपको दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर।